Hello everyone, welcome to Mastura classes. This is Saima here and I am here to teach you 6th class NCRT Polity. As you can see on the screen, our topic today is diversity and discrimination. As we have discussed in last lecture, what do you mean by the diversity? As I told you, that diversity is simple refers to wide variety of something is called a diversity, and discrimination. Now here is an additional point. This is discrimination. In simple terms, discrimination means and discrimination is something when people are treated unfairly or treated differently because of their race, gender, age, class, religion, or sexual orientation. So, this is all about discrimination. Diversity, wide variety of something. Discrimination is all about when people are treated unfairly or treated differently because of their race, gender, age, class, religion, or sexual orientation. So, our topic starts from here. Difference and prejudice. Difference means diversity. There are many things that make us what we are, how we live, the language we speak, what we eat, where, the games we play, and the things we celebrate. All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live. You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. There are 8 major religions in the world. Every single of them is practiced in India. We have more than 1600 languages that are people's mother tongue, and there are more than 100 dance forms. Yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress, and think like us. Sometimes, when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. At times, we may not understand or know the reason why they are different from us. People also from certain attitudes and opinions about others who are not like them. So, difference and prejudice. Difference means here diversity. देर आर मैनी थिंग्स मीन्स कि ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को एक दूसरे से बहुत डिफरेंट बनाती हैं. जैसे हम रहते हैं, जो लैंग्वेज हम बोलते हैं, जैसे हम खाते हैं, जो पहनते, जो खेलते हैं, मीन्स कि जो हम सेलिब्रेट करते हैं. तो देर आर वेरी मनी इन डाइवर्स थिंग्स जो कि हमें एक दूसरे से क्या बनाता है, डिफरेंट बनाता है. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अगर आप देखेंगे कि अगर आपको आइडिया लगाना है कि हमारा जो इंडिया है वो कितना डाइवर्स है, तो इन्होंने बोला है कि देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स. पूरे दुनिया में 8 मेजर ऐसे रिलीजन्स हैं इस पूरे दुनिया में, लेकिन हर एक सिंगल वन ऑफ देम इज़ प्रैक्टिसाइज्ड इन इंडिया. हर एक सिंगल जो रिलीजन है वो प्रैक्टिसाइज हो रहा है इंडिया में. वो है मोर देन 1600 लैंग्वेज, और हमारी जो लैंग्वेज है यहाँ पे 1600 लैंग्वेज है, मोर देन 1600 लैंग्वेजेस है दैट आर पीपल्स मदर टंग, और वो लोगों की क्या है, मदर टंग है. एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, और 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म्स इंडिया में पाए जाएंगे. येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड. दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस. ठीक. समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफैमिलियर. देखो क्या कहते हैं, बोल रहे हैं यहाँ पे कि कभी कभी जब हम लोगों से मिलते हैं तो हमें क्या लगता है कि ये जो मीन्स कि जिनसे हम मिल रहे हैं, जो ये लोग हैं, वो बहुत अनफेमिलियर है और स्ट्रेंज है. ये ओबियस सी बात है. जब मतलब जो चीज़ हम प्रैक्टिस करते हैं, जो चीज़ हम फॉलो करते हैं, अब अगर हम किसी एक ऐसे इंसान को देखेंगे जो हमसे बहुत डिफरेंट है, तो हमें वो स्ट्रेंज ही लगेगा. एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्राम अस. मतलब कुछ हद तक हमें समझ नहीं आता है कि मीन्स कि ये जो पीपल है, ये जो ग्रुप है, ये जो कम्युनिटी है, ये हमसे डिफरेंट क्यों है. पीपल आल्सो फ्रॉम सर्टेन एटीट्यूड्स एंड opinions about others who are not like them. तो कुछ ऐसे एटीट्यूड्स होते हैं, कुछ ऐसे ओपिनियंस होते हैं, हम सब के पास अपनी अपनी एक ओपिनियंस होती है. कुछ ऐसे एटीट्यूड्स होते हैं जो हम मतलब मिलते जुलते बिल्कुल भी नहीं हैं. अब यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स नीचे देकर है, कुछ ऐसे ट्रिक्स देकर है जिससे आपको समझ ये आएगा कि कैसे एक लोग दूसरे लोग से डिफरेंट है. ठीक. सो आई विल कम डायरेक्टली टू द
topic, that is prejudice. Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others. यहाँ पे बोल रहे हैं प्रेजुडिस. प्रेजुडिस का मतलब होता है जब हम किसी ग्रुप को, किसी कम्युनिटी को या किसी भी सोसाइटी को, ये ग्रुप ऑफ पीपल को जब हम नेगेटिवली जज करते हैं या हम उनको अपने से इन्फीरियर देखते हैं, तो उसको प्रेजुडिस कहते हैं. व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट एंड राइट वे टू डू थिंग्स, वी ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स हु मे प्रेफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली. जब हम अपने मन में ये बना लेते हैं कि हम ही सिर्फ ठीक है, जो दूसरा है वो ये काम नहीं कर सकता या वो हमसे इन्फीरियर है या उसकी जो राय है या उसकी जो जजमेंट है या जो उसके ओपिनियंस, एटीट्यूड्स है वो किसी काम के नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रेजुडिस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट. अगर हम ये देखें कि इंग्लिश जो है वो एक बेस्ट लैंग्वेज है और जो बाकी है इसके बरक्स जो भी बाकी लैंग्वेज है वो ठीक नहीं है या वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली. तो यहाँ पर क्या होता है, हम दूसरे लैंग्वेजेस को जज कर रहे हैं नेगेटिवली. As a result, we might not respect people who speak languages other than English. फिर इसका क्या नतीजा निकलता है, इसका रिजल्ट ये निकलता है, we don't respect those people who are speaking other languages. Okay, we can prejudice about many things. तो यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज को लेकर हम prejudice नहीं है. People's religious beliefs, the color of their skin, the region they come from, the accent they speak, in the clothes they wear, extra. ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर रिलीजियस, यहाँ पर बिलीव्स, आपके जो ट्रेडिशंस हैं, नॉर्म्स हैं, रिलीजन है आपका, जो कुछ भी है, हम हर किसी को नेगेटिवली जज करते हैं, मीन्स कि प्री जजमेंट करते हैं हम उसको. जो वर्ड प्रेजुडिस है वो रेफ़र करता है प्री जजमेंट, मीन्स कि अभी हमने उसको, इंसान को अच्छे तरीके से देखा नहीं होता है, समझा नहीं होता, हमने प्री जज किया होता है उसको कि नहीं ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ये हमसे इन्फीरियर है, समथिंग लाइक दैट. तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजुडिस. Often our prejudice about others are so strong that we don't want to form friendship with them. हमारे जो prejudice है ये बहुत ज़्यादा strong है. क्यों है ये ज़्यादा strong? क्योंकि हम उनके साथ क्या friendship भी नहीं रखना चाहते. क्यों नहीं रखना चाहते? Because हम समझते हैं that they are inferior from us. At times we may even act in ways that hurt them. और फिर हम कुछ ऐसे एक्ट करते, कुछ ऐसी हरकतें करते जिनसे उनको क्या हो जाता है, हर्ट हो जाता है. क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स. प्रेजुडिस आपको समझ आया होगा कि प्रेजुडिस हम किसे कहते हैं. द वर्ड प्रेजुडिस रेफर्स टू प्री जजमेंट, मीन्स कि अभी हमने किसी उस पर्टिकुलर बंदे से बात नहीं की होगी, अभी हमने उसको अच्छी तरीके से देखा नहीं, परखा नहीं, समझा नहीं, तो हमने क्या किया, उसको प्री जजमेंट किया. ठीक, तो प्रेजुडिस का मतलब हो गया हैविंग एन अनफेयर और नेगेटिव ओपिनियन. ठीक, किसी के बारे में नेगेटिव ओपिनियन, नेगेटिव राय कायम करना, उसको हम प्रेजुडिस कहते हैं. क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स. ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस. हम सभी जेंडर डिफरेंसेस के से फैमिलियर है, मीन्स कि हमें सबको पता है कि जेंडर डिफरेंसेस क्या होता है. What does it mean to be a boy or a girl? Many of you would say we are born as boys and girls. So it's a nature. देखो, हम जब पैदा होते हैं तो कोई एज अ बॉय पैदा होता है, कोई एज अ गर्ल पैदा. सो इट्स अ नेचर. यहाँ पर इसमें ह्यूमन इंस्टिक्ट कुछ कर नहीं सकती. व्हाट इज़ देयर टू थिंक अबाउट, लेट अस सी इन दिस केस. ठीक, तो यहाँ पर कुछ ये अरेंज स्टेटमेंट्स देकर है कि इधर कुछ ये देकर है कि ऐसे सेक्शंस देकर है कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, गर्ल्स को कैसे बिहेव करना चाहिए और बॉयज़ को कैसे बिहेव करना चाहिए. ठीक, इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, यू विल सी दैट दिस इज़ अ क्वालिटी दैट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज़ एंड मैन. देखो, अगर यहाँ पर एक स्टेटमेंट हम ये लें, दे डोंट क्राई, कि मीन्स कि वो नहीं रोते हैं. ठीक, यू विल सी दैट दिस इज़ अ क्वालिटी दैट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद द बॉयज़ एंड मैन. और आपने अक्सर ये सुना होगा कि दे डोंट क्राई, कि ये किसके साथ
रिलेट करता है हमेशा मैन एंड बॉयज़ के साथ। एज बेबीज और चिल्ड्रन व्हेन बॉयज फॉल एंड हर्ट देमसेल्फ देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स ऑफन कंसोल देम बाय सेइंग डोंट क्राई। जब एक बच्चा मतलब जब एक कोई बेबी होता है, जब वो अपने चाइल्डहुड में होता है, इन्फेंसी एज में होता है, चाइल्डहुड एज में होता है, तो जब वो गिर जाता है या उसको चोट लगती है, तो उसके पेरेंट्स या उसके बाकी फैमिली मेम्बर्स क्या कहते हैं, डोंट क्राई। मीन्स कि आप मत रो, यू आर अ बॉय, आप क्या हो, आप लड़के हो। बॉयज़ आर ब्रेव, दे डोंट क्राई। लड़के क्या है, वो ब्रेव होते, वो बहादुर होते, वो रोते नहीं हैं। As children grow up, they start believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stop himself from doing so. ठीक, अब जब बच्चा ऐसे ये सुन के बड़ा होता है, मीन्स कि एक लड़का किसी फैमिली में है जो वो चाइल्डहुड की एज में है, जब उसको लग जाए या वो गिर जाए या कुछ भी हो उसके साथ, तो उसके जो फैमिली मेम्बर्स है वो उसको किस तरीके से कंसोल करते, they console him that you are a boy, you are very brave, you can't cry. ठीक, you don't cry because you are a boy and you are a very brave. तो जब वो ऐसे बड़ा होता है, तो अब अगर कभी उसको ऐसी सिचुएशन आई कि उसको मीन्स कि रोने का दिल चाहे, तो वो अपने आप को स्टॉप करता है फ्रॉम डूइंग सो। ही ऑल्सो बिलीव्स दैट क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस। तो अब जो वो बच्चा है वो क्या मीन्स कि वो क्या समझेगा यहाँ पे, वो यकीन रखता है ये कि वो ये सोचता है, वो ये यकीन रखता है कि जो क्राइंग है ये एक वीकनेस है। ठीक, ये एक साइन है किसका, वीकनेस का। सो इवन दो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई, स्पेशली इफ दे आर एंग्री or in pain. As they grow older, boys teach themselves not to cry. तो बॉय क्या, अगर कभी लड़का या लड़की को मन चाहे कि उसको रोना चाहिए, ठीक, जो लड़के हैं वो तो रो नहीं पाते हैं। क्यों नहीं रो पाते हैं, क्योंकि वो उसी तरीके से ग्रो होते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर हमने रोया तो हमारी जो सोसाइटी है, मैं तो लड़का हूँ, सोसाइटी क्या कहेगी मुझ पे। ठीक, इफ़ अ ग्रोन बॉय क्राइज देन ही फील्स दैट अदर विल ईदर टीज हिम और लाफ एट हिम। ठीक, अब अगर ग्रोन बॉय रोने लगे तो वो क्या सोचता है, वो क्या फील करता है कि मेरे जो सोसाइटी मेंबर्स है या मेरे जो फ्रेंड्स है या मेरे जो बाकी लोग हैं जिनके साथ मेरी फ्रेंडशिप या जिसके साथ मेरा उठना बैठना है, अगर मैंने उनके सामने रोया, व्हाट दे थिंक अपॉन मी, मीन्स कि वो क्या मेरे बारे में सोचेंगे। वो ये सोचेंगे कि वो मुझे टीज़ करेंगे, और वो ये सोचेंगे कि दैट यू आर नॉट ये ब्रेव, यू आर अ बॉय। ठीक, this is the way boys are, and this is how girls are. ठीक, these are the statements where here constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly. We fit all boys and all girls into an image that society creates around us. तो इसका मतलब क्या है, स्टीरियोटाइप का इन सिंपल मतलब क्या था, मीन्स कि क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स का मतलब था ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है ऑफ फिक्सिंग पीपल इनटू एन इमेज, मीन्स कि एक ही इमेज में लोगों को फिक्स करता है, स्टीरियोटाइप्स करता है, मीन्स कि वो दकियानी सोच काइंड ऑफ। ठीक, व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, जब हम एक इमेज में लोगों को फिक्स करते हैं, उसको हम स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। वो क्या क्रिएट करता है, दे क्रिएट अ स्टीरियोटाइप, वो एक स्टीरियोटाइप क्रिएट करता है। ठीक, when we fix people into one image, we create a stereotype. When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race, or economic background are stingy, lazy, criminal, or dumb, they are using stereotypes. There are stingy and generous people everywhere, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female. And just because of some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. देखिए, यहाँ पे स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, अगर हमने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में ये सोचा कि नहीं ये ऐसे ही है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो ऐसे ही होंगे। ठीक, तो हमारे जो सोसाइटी है वो क्या क्रिएट करती है कि अगर ये लड़का है तो ये रोएगा नहीं, हालांकि ये एक नेचर है, ये एक फीलिंग है, ये एक इमोशन है, रोना उसको भी आ सकता है। ठीक, इफ़ ही इज़ अ ह्यूमन
ह्यूमन बीइंग की तो फितरत ही है, फितरत में ही है कि मीन्स कि उसके जो इमोशंस हैं ये इट इज़ गिवन बाय नेचर। तो रोना तो किसी को भी आ सकता है, लेकिन सोसाइटी ने क्या क्रिएट किया है, यू आर अ बॉय, यू आर अ वेरी ब्रेव, यू कांट क्राई, यू डोंट क्राई, ठीक। तो इसी को हम स्टीरियोटाइप कह सकते हैं। ये हर किसी रिलीजन, हर किसी कम्युनिटी, हर किसी कंट्री में है, ठीक। ये नहीं है कि मीन्स कि आप अगर अभी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में सोच कि ये ऐसा नहीं कर सकते, क्या पता वो ऐसा कर सकते हो, ठीक। हम उधर स्टीरियोटाइप डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है हम उनको वो चीज़ें करने से रोक रहे हैं जिनके लिए वो कैपेबल है, ठीक। स्टीरियोटाइप स्टॉप्स अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज ए यूनिक इंडिविजुअल। जैसे कि मैंने अभी कहा कि स्टीरियोटाइप्स हमें रोकता है, वो स्टॉप करता है कि हम हर किसी पर्सन को एक यूनिक इंडिविजुअल की तरह देखें विद हिज और हर ऑन own special qualities and skill that are different from others. They fit large numbers of people into only one pattern or type. Stereotypes affect all of us. They prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. स्टीरियोटाइप्स हमें स्टॉप करता है अपनी स्किल को एनहांस करने में, जो हमारी एबिलिटी है उसको एनहांस करने में। स्टीरियोटाइप का मतलब यही हो गया कि मीन्स कि ये एक ऐसा प्रोसेस हो गया कि हम एक ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटी, सोसाइटी को हम एक फिक्स्ड इमेज में रखते, एक वन इमेज में रखते कि नहीं इनसे नहीं होगा ये, ठीक। क्या पता उनसे वो हो, कि उनकी जो स्किल है वो उनकी जो एबिलिटी है हम उनको वो एनहेंस करने से वो रोकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा आता है इन इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द इन इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो इन इक्वालिटी है वो रेफर करता है टू डिफरेंस इन रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज एंड आउटकम्स बिटवीन पीपल और ग्रुप्स। Discrimination happens when people act on their prejudice or stereotypes. If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. डिस्क्रिमिनेशन मैंने आपको बोला पहले ही अर्लियर। डिस्क्रिमिनेशन इज़ ऑल अबाउट व्हेन पीपल आर ट्रीटेड अनफेयरली और ट्रीटेड डिफरेंटली। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया कि जब हम लोगों को या ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पीपल को किसी चीज़ से रोकते हैं कि आप ये मत करो, या यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम उनको मीन्स कि अगर हम पानी कहीं से निकाल रहे हैं तो हम दूसरे ग्रुप ऑफ जो हमसे इन्फीरियर होंगे हम उनको वो पानी निकालने नहीं देंगे, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट करें। हालांकि जो वाटर है वो सबके लिए बराबर है। Discrimination can take place because of several reasons. You probably recall from the previous chapter, the Samir 1 and Samir 2 were different from each other in many ways. अगर previous chapter में हम ये देखें कि जब हमने पढ़ा था समीर 1 and समीर 2, ठीक, तो वो डिफरेंट थे एक दूसरे से, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस थे। फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, दिस इज़ एन आस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन also be a source of discrimination, ठीक। groups of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in specific region, etc., may be discriminated against, their customs or practice may be seen as inferior। अगर कोई ऐसा ग्रुप जो कि अलग लैंग्वेज बोलता हो या स्पेसिफिक रीजन में रहता हो या कुछ भी चीज़ या स्पेसिफिक रिलीजन फॉलो अप करता हो, तो हम उसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे, हम उनको इन्फीरियर मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा रिलीजन फॉलो नहीं कर रहे, वो हमारा रीजन फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं और हम उनको इन्फीरियर समझते हैं खुद से। अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर्स वाज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो दूसरा डिफरेंस यहाँ पर क्या हो गया, पहला जो डिस्क्रिमिनेट था वो क्या था, मीन्स कि आपका कस्टम को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर, नॉर्म्स को लेकर। तो दूसरा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर इकोनॉमिक बैकग्राउंड को लेकर, मीन्स कि
किसी का जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो ज़्यादा हाई होता है और किसी का बहुत कम होता है, तो इस बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। समीडू वाज पुअर, जो समीडू है वो बहुत गरीब होता था। दिस डिफरेंस एज यू हैव रेड अर्लियर, जो हमने पहले ही पढ़ा, इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी। ये एक फॉर्म डाइवर्सिटी का नहीं है, लेकिन ये किसका फॉर्म है, ये इनइक्वालिटी का फॉर्म है। इनइक्वालिटी मीन्स कि इक्वली ट्रीट ना करना। People who are poor do not have the resources or the money to meet their basic needs of food, clothing, and shelter. They experience discrimination in offices and hospitals, schools, etc., where they are treated badly because they are very poor. मीन्स कि जिनके पास इकोनॉमिकली बैकग्राउंड ना हो तो उनके साथ हर तबके में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। मीन्स कि जैसे कि ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, इनके साथ हर वक्त क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है। क्यों? क्योंकि हम उनको ट्रीट करते हैं बहुत बुरी तरीके से, हम उनको ट्रीट करते हैं एज अ पुअर। Some people may experience both kinds of discrimination. They are poor and they belong to groups whose culture is not valued. Tribal, some religious groups, and even particular regions are discriminated against for one or more of these reasons. In the following section, we will look at how a famous Indian was discriminated against. This will help us understand the ways in which caste was used to discriminate against a large number of people. देखिए, discrimination means कि कभी कभी हम लोगों को क्या डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि उनकी कल्चर की वैल्यू नहीं करते, उनकी ग्रुप की हम वैल्यू नहीं करते। जैसे कि ट्राइबल एक कम्युनिटी है, ठीक, उनकी है ना हम रिलीजियस की ये कदर करते हैं, ना हम उनके रीजन की कदर करते हैं, ना हम उनकी ग्रुप की, ना कम्युनिटी के, हम किसी की उनकी कदर नहीं करते। हम उनको एज इन्फीरियर ट्रीट करते हैं और हम उनको क्या करते हैं हम उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, पॉटरी, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा टू अर्न अ लाइवलीहुड। हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर वर्क्स। देखिए, कुछ लोग जो होते हैं वो एंगेज होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, ठीक, जैसे कि टीचिंग है, कारपेंट्री, पॉटरी है, वीविंग है, फिशिंग है, फार्मिंग है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है, ऐसे बहुत सारे वर्क जो है, जो एक इंसान क्या करता है ज़िंदा रहने के लिए, अपनी कमाई के लिए, अपने घर चलाने के लिए, लाइवलीहुड के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क, ये जो ऐसे वर्क्स है इनकी भी बहुत वैल्यू है, लेकिन हम इनको वैल्यू नहीं करते हैं। एक्टिविटीज़ लाइक Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as tasks that are of less value, and people who do this work are seen as dirty or impure. कुछ ऐसे एक्टिविटी जैसे कि सफाई करना या वॉशिंग या कटिंग या कुछ भी, ये पिकिंग गार्बेज वगैरह, ऐसे कुछ टास्क्स होते हैं दैट आर ऑफ लेस वैल्यू, एंड पीपल हु डू दिस वर्क मीन्स कि इसका क्या है, लेस वैल्यू है, मीन्स कि इनकी जो वैल्यू बहुत कम है। और जो ये लोग काम करते हैं, हम क्या उनको समझते हैं एज डर्टी और इम्प्योर। This belief is an important aspect of the caste system. In the caste system, communities, groups of people were placed in a sort of a ladder where each caste was either above or below the other. Those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper. देखो, जो ये बिलीफ है, ये जो दिस बिलीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है किसका, कास्ट सिस्टम का। इन द कास्ट सिस्टम जो कम्युनिटीज़ है या ग्रुप ऑफ पीपल है, ये अपने आप को एक ऐसी सीढ़ी पे रखते हैं where each caste was either above or below the other, ठीक। those who placed themselves at the top, जो इस सीढ़ी पे अपने कम्युनिटी को या अपने रिलीजन को या अपने कास्ट को कहाँ पे रखते हैं, ऊपर रखते हैं, ऑफ दिस लैडर कॉल्ड themselves upper, उसको क्या कहते हैं,
अपर कास्ट एंड saw themselves as superior, और वो अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम superior है. The groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables. और इसी सीढ़ी के अगर बहुत नीचे क्या हो, दूसरी कोई कम्युनिटी हो, उसको क्या, बॉटम पे जो कम्युनिटी हो उसको क्या बोलते हैं वो, कि ये अनवर्दी है, किसी काबिल नहीं है, और ये अनटचेबल्स है और छूत है. कास्ट रूल्स were set which did not allow the so called untouchables. और जो कास्ट का रूल है कि ये इन so called untouchables को अलो नहीं करती है किसी भी काम में, चाहे वो कुछ भी हो. ठीक, फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप्स वेर फोर्स्ड टू पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज. ठीक, बट दे वेर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ अपर कास्ट और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेयर. फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई ऐसा ग्रुप था, सम ग्रुप्स वेर फोर्स्ड टू पिक गार्बेज, उनको मजबूर किया जाता था कि आप क्या उठाए, आप कूड़ा करकट उठाए और रिमूव करें डेड एनिमल्स को, कहाँ से, गाँव से. बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट, मगर उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि आप किनके, अपर क्लासेस के, जो अपर ये है कास्ट के लोग हैं, उनके घरों में एंट्री उनको नहीं दी जाती थी, और उनको विलेज से, कुएं से पानी भी नहीं निकालने दिया जाता था. और इवन एंटर द टेम्पल्स, और मंदिरों वगैरह जो रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ पर भी उनको एंट्री नहीं मिलती थी. देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट्स इन स्कूल, और उनके बच्चों को भी बैठने नहीं दिया जाता था अपर क्लासेस के बच्चों के साथ. ठीक, दस अपर कास्ट Thus, upper caste acted in ways which did not give the so-called untouchables the same rights as they enjoy. अच्छा, अपर कास्ट है जो, जैसे वो राइट्स अपने एंजॉय करते थे, वो अनटचेबल्स को वैसे राइट्स एंजॉय करने नहीं देते थे. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया. ये एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये ग्रेट पर्सनालिटी है, ग्रेट लीडर है इंडिया के. Shares his first experience of caste-based discrimination, which took place in 1901 when he was just 9 years old. He had gone with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon, विच इज़ नाउ महाराष्ट्र. ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये एक ग्रेट पर्सनैलिटी है इंडिया की लीडर में. इन्होंने अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर किया था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में, जो कि इनके साथ हुआ था 1901 में, जब ये सिर्फ 9 years ओल्ड थे. ही हैड गॉन विद हिज ब्रदर्स, ये अपने ब्रदर्स और ब्रदर्स के भाई के साथ गए थे, और अपने कजन्स टू मीट हिज फादर, अपने बाप से मिलने, इन कोरेगांव विच इज़ नाउ महाराष्ट्र, जो कि अब महाराष्ट्र है. लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्नड अप. An hour elapsed and the station master came to inquire. He asked us for our tickets. We showed them to him. He asked us why we tarried. We told him that we were bound for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. तो जब ये वहाँ पे रेलवे स्टेशन गए, तो रेलवे स्टेशन ने, स्टेशन के जो मास्टर ने, उन्होंने इंक्वायर किया कि आप लोग यहाँ, आप लोगों की टिकट्स का है. वी शोड them to him. He asked us why we are tarried. We told him that we were bound for कोरेगांव. हम कहाँ से हैं? हम कोरेगांव से हैं. ठीक, हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ जाना है, हमें कोरेगांव जाना है. तो उनको नहीं पता थी कि हमें कोरेगांव कैसे जाना है. We were well dressed children. From our dress or talk, no one could make out that we were children of them untouchables. ठीक, हमारा जो ड्रेस था वो बहुत वेल ड्रेस्ड, उन्होंने अच्छी तरीके से पहना था. तो फ्रॉम आवर ड्रेस और टॉक नो वन कुड मेक दैट वी वेयर चिल्ड्रन ऑफ द अनटचेबल. जो हमारी बात थी, जो हमारी बातचीत थी और जो हमारे ड्रेस थे, उससे ये सेंस नहीं लगाया जा सकता था कि हम किसके बच्चे हैं, अनटचेबल्स के. इंडीड द स्टेशन मास्टर वॉज क्वाइट श्योर वी वर ब्राह्मण चिल्ड्रन एंड वॉज एक्सट्रीमली टचड एट द plight in which he found us.
As is usual among the Hindus, the station master asked us who we were. Without a moment, thought I blurted out that we were Maharas. Mahar is one of the communities which were treated as untouchables in the Bombay Presidency. देखिए तो जो एक स्टेशन मास्टर था वो चुप था और उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि ये जो बच्चे हैं ये ब्राह्मण के बच्चे हैं। ठीक वाज एक्सट्रीमली टच्ड एट द प्लाइट इन विच वी ही फाउंड अस, जैसे कि उसने हमारा देखा ड्रेस वगैरह, उसको लगा कि हाँ ब्राह्मण है। तो उसने फिर पूछा हमसे कि ये वी आर, मतलब कि आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि वी आर महाराज। महाराज एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो कि ट्रीट की जाती है अनटचेबल्स इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक, ही वॉज स्टन्ड, हिज फेस बिहाफ स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू। तो वो स्टन, वो हैरान हो गया और वो साइलेंट चुप खड़ा रहा और अब उसको ये नहीं पता था कि मुझे अब क्या करना है या मुझे क्या बोलना है। And at a sudden time, we could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, he went away to his room, and we stood where we were. 15 of 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up, nor had he sent his servant. And now the station master had also left us. We were quite bewildered, and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness. जब उस स्टेशन मास्टर को ये पता लगा कि मीन्स कि ये एक महाराज है, मीन्स कि अनटचेबल्स है, तो वो स्टन रह गया, मीन्स कि हैरान रह गया। तो एज सुन एज ही हैड माई रिप्लाई, जब उसने उसका रिप्लाई सुना कि मीन्स कि ये कहाँ से है, ये महाराज है वगैरह, तो वो जो है वो ही वेंट अवे टू हिज रूम एंड वी स्टूड वेयर, तो वो अपने रूम में चला गया और वो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो वहीं पे थे जहाँ पर वो थे खड़े थे। 15 और 20 मिनट्स के बाद होने के बाद जो सन है वो भी ये ऑलमोस्ट सेटिंग डाउन हो रहा था, और जो उनके फादर है ना ही उन्होंने उनसे मीन्स की वो खुद आए और ना ही किसी सर्वेंट को भेजा। जो स्टेशन मास्टर है वो भी चला जाता है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, जब स्टार्टिंग जो जर्नी थी उनकी वो बहुत जॉय और हैप्पीनेस की थी, तो उन्होंने कहा कि अब जैसे कि टाइम पासिंग आउट हो रहा था तो हमें क्या हो रहे हमें एक एक्सट्रीमली सैडनेस हो रही थी कि क्या पता अब आगे क्या हो। आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न, तो आधे घंटे के बाद जो स्टेशन मास्टर है वो वापस आता है एंड आस्क्ड अस व्हाट वी प्रपोज टू डू, और बोलता है कि आपको क्या करना है। वी सेड दैट इफ वी कुड गेट अ बुल कार्ट ऑन हायर वी वुड गो टू कोरेगांव। ठीक, तो अब वो क्या बोलते हैं कि अगर आप हमें एक बैलगाड़ी लाए या बैलगाड़ी हायर करें, वी वुड गो टू कोरेगांव, हम कहाँ जाएंगे, कोरेगांव। एंड इफ इट वाज नॉट वेरी far, we would like to start straightway. There were many bull carts plying or for hire, but my reply to the station master that we were Maharaj had gone round among the cartmen, and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passenger of untouchable classes. We were prepared to pay double the fare, but we found that money did not work. The station master, who was negotiating on our behalf, stood silent, not knowing what to do. देखिए, तो ये क्या यहाँ पर कहते हैं, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर कहते हैं कि आप हमें एक बुल कार्ट हायर कीजिए जहाँ से हम कोरेगांव जाए। लेकिन हमने जितने से भी पूछा तो वहाँ पे क्या बोल रहे, वो हमें एक सीधा जवाब देते हैं कि वो आप लोग पोल्यूटेड हो, हम आपको अपने साथ नहीं लेंगे, जबकि हम उनको डबल पे करने के लिए भी तैयार है। तो अब जो ये स्टेशन मास्टर है ये चुप करके बिहाव साइलेंटली खड़ा हो जाता है और उसको पता नहीं होता है कि अब मुझे करना
Imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to the other. How insulting and hurtful is it to have people move away, refuse to touch you, or allow you to drink water from the same source as they do. आप इमेजिन करें कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि जब एक पीपल एक जगह से दूसरी जगह आते हैं और उनको इंसल्ट किया जाता है या उनका दिल दुखाया जाता है या उनको ये कहा जाता है कि आप इधर से पानी नहीं पी सकती, आप ये काम नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो आप ज़रा ये सोचिए कि कितना ज़्यादा इंसल्टिंग या कितना ज़्यादा हर्टफुल होगा वो उनके लिए। द स्मॉल इंसिडेंट शोज हाउ अ सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू another in a cart was not available to the children। जो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर है, जो उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की थी, उन्होंने क्या कहा कि वो एक स्मॉल इंसिडेंट था हमारे साथ कि हमें मीन्स कि हमें काट नहीं मिल रहा था, हमें बुल काट नहीं मिल रहा था, कि हमें एक जगह से सिर्फ दूसरी जगह जाना था। इवन कि हम उसके लिए पैसे भी दे रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें टच करने से या हमें अपने कार्ट में बिठाने से इनकार कर दिया। सो क्लियरली एज दिस स्टोरी शोज अस, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग दलित्स। ये सिर्फ दलित्स के लिए ही नहीं था, बाकी लोअर कास्टर्स के लिए भी था ये। फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बट इट ऑल्सो डिनाइज देम द respect and dignity given to others। Striving for equality. The struggle for freedom from British rule also included within it the struggle of large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. Dalits, women, tribals, and peasants fought against the inequalities they experienced in their lives। जो दलित वुमेन्स थे, ट्राइबल्स थे, पीजेंट्स थे, जो स्ट्रगल था इनका फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, जो उनकी अंडर कॉलोनियल रूल में थे हम ये इंडिया, तो इधर इन्होंने क्या ये कौन सी स्ट्रगल रही थी फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, एज वी ऑल नो। ठीक, तो जो दलित वुमेन्स थे, ट्राइबल्स थे, पीजेंट्स थे, उन्होंने किस बारे में लड़ा, किस अगेंस्ट लड़ा? इनइक्वालिटीज दे एक्सपीरियंसड इन देयर लाइव्स। इनइक्वालिटी के खिलाफ जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया अपनी जिंदगियों में। As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. Women demanded that they should have as much a right to education as men did. Peasants and tribals fought to release themselves from the grasp of the money lender and the high interest they were charged। तो इनको ये जो दलित्स है उन्होंने क्या और पॉइंट आउट किया, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया देमसेल्व एज टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। दलित्स ने बोला कि हमें भी एंट्री मिलनी चाहिए टेम्पल्स में, और वुमेन ने डिमांड किया कि हमें भी उतना हक मिलना चाहिए एजुकेशन का जैसे कि एक मैन को होता है। और पीजेंट्स ने क्या और ट्राइबल्स ने क्या, किसके अगेंस्ट फॉट किया, किसके अगेंस्ट लड़ा? फ्रॉम द ग्रेस्प ऑफ द मनी लैंडर एंड हाई इंटरेस्ट दे वेर चार्ज। और जो मनी लैंडर जो उनसे चार्ज करते थे हाई इंटरेस्ट, उनके अगेंस्ट उन्होंने लड़ा। व्हेन इंडियन बिकम अ नेशन इन 1947, आवर लीडर्स टू वर कंसर्न्ड अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट। दोज हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which as a crime has been legally abolished by law। तो हुआ क्या कि जब हमारा इंडिया जो है ये एक नेशन बना 1947 में, जो हमारे लीडर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा कंसर्न थे इस इनइक्वालिटीज़ से। क्यों थे कंसर्न? बिकॉज उन्होंने देखा था जब हम अंडर ब्रिटिश रूल थे, हम चाहे वो दलित कम्युनिटी हो, पीजेंट्स हो या ट्राइबल हो या कोई भी ऐसे वुमेन में ये जो थे, जो भी कम्युनिटी थे, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनके साथ इनइक्वालिटीज़ हो रही थी, अपर कास्ट थे, सॉरी लोअर कास्ट वगैरह जितनी भी ये कम्युनिटीज़ थे जिनके साथ इनइक्वालिटीज़ हो रही थी। जब हमारा इंडिया एक नेशन बना 1947 में, जो हमारे इंडिया के लीडर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, बिकॉज जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ हो रही थी इंडिया में। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री लिखी, तो उन्होंने भी कुछ विच द नेशन वुड फंक्शन वेयर अवेयर ऑफ द वेज इन विच एज अ क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली एबॉलिश्ड बाय लॉ। तो उन्होंने क्या लिखा इस कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो इनइक्वालिटीज़ हो रही है, प्रैक्टिसेस हो रही है इनमें, इंडिया में हो रहा है, तो उसके लिए एक उसको एक क्राइम, लीगली क्राइम बनाया और इसको एबॉलिश किया बाय लॉ। पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। जो लोग हैं उनको आज़ादी दी, उनको फ्रीडम दिया, उनको बोला कि आप अपनी मर्ज़ी से अपना कोई भी किस्म का काम आप चुन सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल द पीपल। और जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट जॉब्स है, वो हर किसी लोगों के लिए ओपन है, नो मैटर वेदर इट इज़ अपर कास्ट और lower caste. In addition, the constitution also places responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and other such marginal communities. जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने क्या एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाहिर की या ऑन द गवर्नमेंट टू टेक द स्पेसिफिक स्टेप। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रिस्पॉन्सिबल जाहिर की गवर्नमेंट पे, तो उन्होंने क्या बोला कि गवर्नमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला गवर्नमेंट को कि आप कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टेप्स उठाए जो कि इक्वालिटी की तरफ हमारी नेशन को ले जाए, ताकि जो अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट में कोई भी इनइक्वालिटी ना रहे। द राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो सेड दैट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वाज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन ensuring equality. They felt that people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festivals and express themselves freely. जो राइटर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन ने, कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने क्या कहा कि हमें अपनी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हमें हर किसी एलिमेंट को इंश्योर करना चाहिए, हमें हमें ये इक्वालिटी को इंश्योर करना चाहिए। ठीक, हमें लोगों को आज़ादी देनी चाहिए कि वो अपना रिलीजन खुद चुने, अपनी कॉन्शियसनेस के साथ चुने, और जो अपनी लैंग्वेज खुद वो स्पीक करे, और अपने जितनी भी फेस्टिवल्स है वो खुद सेलिब्रेट करे और एक्सप्रेस करे अपने आप को फ्रीली। They said that no one language, religion or festival should become compulsory for all to follow. They said that the government must treat all religions equally. तो उन्होंने कहा कि कोई भी लैंग्वेज या रिलीजन और फेस्टिवल को कंपल्सरी नहीं बनाए। ठीक, दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। उन्होंने गवर्नमेंट को कहा, कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को कहा कि आपको क्या करना है, आपको हर किसी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना है। Therefore, India become a secular country where people of different religions and faith have discriminated and practiced in our society, and how people had struggled against this. Many leaders of these struggles, such as Dr. Ambedkar, had also fought for the rights of the Dalit. So these leaders set out a vision and goals in the constitution and ensure that all the people of India were considered equally. This equality of all persons is seen as a key value that unites us all as Indians. Everyone has equal rights and opportunity, and touchability is seen in the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. This is seen as an important element of our unity, that we all live together and respect one another. Those ideals are enshrined in our constitution. This chapter points out that inequalities exist even today. Equality is a value that we have to keep striving for, and not something which will happen automatically. People's struggles and positive actions by the government are necessary to make this reality for all Indians. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इस चैप्टर में हमने पॉइंट आउट किया कि जो इनइक्वालिटीज़ है वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक, इक्वालिटी जो है वो हमें, जो इक्वालिटी है वो एक वैल्यू है दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर, नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। वो एक ऐसा नहीं कि वो ऑटोमेटिकली हैपन
हो जाए. पीपल स्ट्रगल एंड पॉजिटिव एक्शन, जो लोगों की स्ट्रगल है और पॉजिटिव एक्शन है बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस रियलिटी. उनको ज़रूरी है कि वो इसको क्या बनाए, रियलिटी बनाए फॉर ऑल इंडियंस. So this is all about today. Thanks for watching.